ग्लैमरस होना अच्छी बात है, लेकिन ग्लैमर को अगर मीठी जुबान मिल जाए तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। पर यही कमी टीएमसी की ग्लैमरस सांसद महुआ मोइत्रा को संसद में शर्मिंदा करा देती है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की गिनती वैसे तो फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है, लेकिन कभी कभी तलखी में उनकी जुबान भटक जाती है और उनकी किरकिरी हो जाती है। 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलते हुए उन्होंने अदानी मामले को लेकर सरकार की खूब बखिया उधेड़ी, लेकिन बाद में उनकी जुबान से ऐसा शब्द निकला जो संसदीय भाषा के दायरे में आता है। आप भी सुनिए महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्या कहा जिससे सदन में बवाल मच गया। Immediately order full, complete and thorough investigation into all matters. Our country's reputation and the systemic stability of our markets are at risk. Don't worry about infrastructure assets. We have world-class Indian companies who can easily take over these businesses and be kept in check by our regulators. Let us all wear a topi in solidarity as a signal to these agencies that investigate immediately, fully and thoroughly in all aspects. In conclusion, everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. जैसे शायर ने कहा है, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ। And in conclusion, sir, are you going to shut him up, sir? Sir, are you going to shut him up, sir? I appeal to you. Are you going to shut him up, sir? You please address to the chair. I am addressing you, sir. Are you going to shut him up or not? Because in conclusion, sir, I have a right to speak without being heckled, sir. It is your duty as the chair to ensure that for me. And in conclusion. अरे अभी तो मान जाओ. In conclusion, everyone is asking. ये प्रश्न मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ. Sir. अभी तो मान जाओ. Shut up. Sir. बैठिए. In conclusion. Sir, in conclusion. बैठिए. Please let him go. Sir, in conclusion, sir. Sir, I would like to finish, sir. Sir, in conclusion, everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade floats new theories. Is it the Chinese? You are repeating. Is it Ambani? Is it JP Morgan? You are repeating. No, yes, I need to repeat it, sir, because they are doing this purposely to heckle me and to ruin the flow of the speech. So I need to repeat it because they need to hear it. I have to call the next. Sir, nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। Thank you. Honorable Member K. Rammohan Naidu. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to speak on motion of thanks to the President. Sir, I know there are a lot of issues that are happening across the country, but I would like to draw the attention of the House and especially the attention of the central government towards the state of Andhra Pradesh. Sir. There are a lot of issues pending for the last 10 years, and why I mentioned 10 years is 10 years back in this very house, AP was divided into 2 states, Telangana and Andhra Pradesh, and there was a clause in the AP Reorganization Act through which it was bifurcated that in the next 10 years, everything that is mentioned in the act is going to be fulfilled, and the major partner in this is the central government, sir, the nodal person who has to fulfill these. If you consider this after 10 years also, there are a lot of these issues. If you consider after 10 years, मैं बोलने दो ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ। तो सुना आपने, क्या किसी महिला सांसद की जुबान से ऐसे शब्द निकलने की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया और इससे सदन में उनकी खूब किरकिरी हुई। मामला इतना गर्मा गया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को दखल देना पड़ा। लेकिन 8 फरवरी को जब महुआ मोइत्रा संसद पहुंची तो उन्हें इस बात का तनिक अफसोस नहीं था। वो तो मीडिया पर ही बिफर उठी।
प्रश्न है ना, इसीलिए हम आप लोग का टीवी 9 या जो भी चैनल है इन लोग को कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि कल जो मेन चीज हुआ अदानी के बारे में सब कोई ओपनली बोला। तो आप प्रश्न उसके कीजिए, कौन किसको क्या बोला वो हमको कोई जाता नहीं। सुनिए, आप आगे मेन मुद्दा की बात कीजिए, फिर आपका जो सेकेंडरी क्वेश्चन है वो पूछिए, क्योंकि आप बीजेपी के सब चैनल आके पूछते हैं कि आपका क्वेश्चन का हमको आंसर देना पड़ेगा। कल का जो मेन मुद्दा था, सारा इंडिया देखा कि अदानी के बारे में सारा इंडिया जान पाया। हमने कल का जो मुद्दा था, कल जो अदानी का मुद्दा था, ये 3 साल से 2019 से हम ये मुद्दा बार बार उठा रहे। हमने चिट्ठी लिखा पे, आज हिंडनबर्ग निकल आया, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेके। हिंडनबर्ग का 3 साल पहले 2019 से अदानी पावर के बारे में, अदानी पोर्ट्स के बारे में, अदानी एयरपोर्ट्स के बारे में, अदानी एंटरप्राइजेस के जो शेल कंपनीज है जो कि मॉरिशस बेस्ड फंड्स है, उसके बारे में मैंने चिट्ठी लिखा है SEBI को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मैंने यहाँ पे हाउस पे उठाया है। इन्होंने हम लोग को चुप करा के बैठा दिया था। और कल पहली बार इंडिया के सामने सारे ऑपोजिशन पार्टी पहली बार मुंह खोल के, हम तो अदानी बोल ही नहीं सकते थे, बोलने से चुप करा दे सकता था। तो कल हम बोल रहे बहुत शुभ दिन था भारतीय गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि सारा इंडिया ने सुना कि असलियत क्या है। तो यही मेन मुद्दा है। और ऑफ द रिकॉर्ड कौन किसको क्या बोला है इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और ऑफ बीजेपी नहीं, सुनिए, बीजेपी से हमको अभी पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं सीखना है। हम जो बोला एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल को हम संतरा नहीं बोलते, हम वो आदमी नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के असंसदीय भाषा को लेकर जब बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आप खुद सुन लीजिए। नहीं होना चाहिए, जो सभी रेस्पेक्टेबल लोग यहाँ पे आते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है सबको, है ना। बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। महुआ का कहना है कि उनको कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने एप्पल को एप्पल ही कहा है। उनका बाय नेचर शी मस्ट बी लाइक दैट, सो आई डोंट नो, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। बहरहाल सदन की गरिमा का ख्याल उसमें बैठने वाले लोगों को ही करना होगा। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हो या फिर किसी दूसरे दल का कोई और सांसद, संसद में जो कुछ होता है देर सबेर पब्लिक डोमेन में पहुंचता ही है। लिहाजा कोई भी एक्ट संभल कर ही करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।